مجھ گناہگار کو اپنے رب سے کچھ مانگے ہوئے کہ اس نے عطا بھی کر دیا تھا۔ بارش کی پہلی بوند زمین تک پہنچی تو بڈ اچھل کر کھڑا ہو گیا، پھر اس کے حلق سے کلکاری سی نکل گئی، بارش! لیکن میں اب کچھ نہیں سننا چاہتا تھا۔ احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرنے کی خواہش دل میں مچل رہی تھی۔ میں نے بارش کے پانی ہی سے وضو کیا اور اس کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ بارش زور سے شروع ہو گئی تھی اور بڈ نے سارے کپڑے اتار دیے تھے۔ وہ اچھل کود مچا رہا تھا اور میری زبان پر صرف اور صرف سبحان ربی اللہ اعلیٰ تھا اور کچھ کہنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ آگ بارش سے بجھ گئی تھی اور حیرت انگیز طور پر سردی کا احساس جاتا رہا تھا۔ لکڑیوں کے وہ انبار بھیگ رہے تھے جو ہم نے سردی سے بچاؤ کے لیے جمع کیے تھے۔ چیف بارش! او مائی گاڈ! ہمارے پاس پانی بھی نہیں رہا تھا چیف۔ سارے بدن میں ایسی بو رچ گئی تھی کہ خود سے کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ چیف! ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ بڈ چونک کر رک گیا تھا۔ میرا دل بھرا نہیں تھا، بس یہی خواہش تھی کہ اسی طرح سجدے میں پڑا اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں، لیکن بے خوف بڈ نے میری یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ وہ تشویش زدہ ہو کر میرے پاس آ بیٹھا۔ چیف تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا سردی لگ رہی ہے؟ وہ مجھے جھنجھوڑنے لگا اور پھر اس گدھے نے مجھے سیدھا کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ مجبوراً میں سجدے سے اٹھ گیا۔ بڈ احمق، کیا فضول حرکت ہے، میں نے برہمی سے کہا۔ تمہیں کیا ہو گیا تھا چیف؟ شاید سردی سے؟ بالکل بے وقوف ہو بڈ، کیا تم اس طرح اوندے ہو کر میری بے وقوفی پر غور کر رہے تھے چیف؟ بڈ نے متحیرانہ انداز میں کہا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ ہاں میں بھی ہنس پڑا تھا۔ یہ کوئی جدید سائنٹیفک طریقہ غور کرنے کا؟ شاید، میں نے بدستور ہنستے ہوئے کہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ بارش خوب زوردار ہونے لگی تھی، میں بھی نہانے میں مصروف ہو گیا۔ ہم نے پانی کا ذخیرہ بھی کر لیا تھا۔ بارش کوئی 2 گھنٹے جاری رہی اور پھر آسمان پہلے کی مانند شفاف ہو گیا۔ اس بارش نے دل کی کثافت دھو دی تھی۔ یہ میرے لیے تائید غیبی تھی۔ اس سے بڑا سہارا، اس سے بڑی کوئی اور امید بھی ہو سکتی تھی؟ میں اس کی نگاہ میں تھا جو ہر جگہ موجود ہے۔ اس سے رابطے کے لیے کسی ٹرانسمیٹر کی، کسی مادی ذریعے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جہاں جس حال میں ہو اسے بس آواز دے لو۔ آواز میں لگن اور سچائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کلیجہ ہاتھ بھر کا ہو گیا تھا۔ یہ بارش خوب ہوئی ہے چیف، حالانکہ آسمان شفاف تھا۔ بڈ نے کہا۔ ہاں بڈ، یہ کسی کا تحفہ تھا ہمارے لیے، میں نے آہستہ سے کہا۔ بڈ مجھے دیکھنا لگا، پھر بولا، کس کا؟ پوچھنے کی ضرورت ہے بڈ، تم مذہبی انسان ہو چیف، خدا کے فضل سے بڈ، کیا تم نہیں ہو؟ میں؟ بڈ نے سوالیہ انداز میں کہا۔ میں نے کبھی خود سے یہ سوال نہیں کیا، کبھی کر کے دیکھنا۔ ہاں، بڈ کھوئے کوئی انداز میں بولا، ضرور کروں گا۔ پھر وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ میں بڈ کی صورت دیکھ رہا تھا مگر اس نے اس کے بعد کچھ نہیں کہا۔ تمہارے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا بڈ، بس چیف میں نے بڑے اہتمام سے ماضی کی ایک قبر بنائی ہے اور اس پر پتھر کی موٹی موٹی سیلیں ڈھک دی ہیں۔ میں نے طویل عرصے تک ان وزنی سیلوں میں کبھی جنبش نہیں ہونے دی، لیکن اب کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زلزلہ آ رہا ہو۔ یہ سیلیں ہلنے لگتی ہیں اور ان کے رخنوں سے ماضی کے ناگ پھن لہراتے نظر آتے ہیں۔ پھر ان لہراتے ہوئے ناگوں کے سر کچلنے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ بہت پریشان ہوتا ہوں میں۔ بڈ کے لہجے میں تلخی آ گئی تھی۔ کیا ماضی ہے تمہارا بڈ؟ چھوڑو چیف، کیا فائدہ، کیا کرو گے اس کے بارے میں جان کر؟ بڈ نے افسردگی سے کہا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا بڈ، لیکن میرے دل میں تمہارا ایک مقام ہے۔ تم بے جگر اور دلیر انسان ہو۔ یہ بتاؤ فاخرہ یعقوبی کے ساتھ کب سے کام کر رہے ہو؟ 2 سال ہوئے۔ کیا تم اس کے کسی سلسلے میں احسان مند ہو؟ اس کا تو نہیں چیف، ایک بڑے آدمی کا جو ایک عرب ملک کا باشندہ ہے۔ اس نے مجھ پر کچھ احسانات کیے تھے اور پھر اس کی خواہش ہوئی کہ میں اس سلسلے میں کام کروں۔ میں نے قبول کر لیا۔ اس نے مجھے میڈم کے سپرد کر دیا۔ تم بہت دلیر انسان ہو، انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک، اور میں ایسے لوگوں سے عشق کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے چیف، میں جانتا ہوں کہ تم ہی ایسا کر سکتے ہو جو کسی سہارے کے بغیر لینڈ روور کی چھت پر چڑھ کر ہیلی کاپٹر گرا سکتے ہو۔ اپنی بات بھی تو کرو چیف۔ میں مسکرا دیا۔ بڈ کسی سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ بارش بار بار مجھے حیرت میں مبتلا کر رہی ہے چیف۔ چھوڑو بڈ، آرام کرو۔ آرام؟ بڈ کے لہجے کی تلخی ابھی برقرار تھی۔ ہاں، تم سو نہیں سکے، یہ تو ٹھیک ہے چیف، لیکن اب مجھے نیند نہیں آ رہی، اس نے بیزاری سے کہا۔ کیوں؟ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم شاید عبادت کر رہے تھے، میں نے تمہارے ہم مذہبوں کو اسی طرح عبادت کرتے دیکھا ہے۔ ہاں بڈ، میں سجدہ شکر ادا کر رہا تھا۔ میں نے بارش کی دعا مانگی تھی اور آسمان سے پانی ٹپکنے لگا۔ کیا ایسا ہو جاتا ہے؟ وہ کسی قدر تعجب سے بولا۔
ज़रूर होता है बिड, कभी सच्चे दिल से कोई दुआ मांगो। क्या मांगू, किसके लिए मांगू? कुछ भी तो नहीं चाहिए मुझे, करना भी क्या है किसी चीज़ का। जिंदा हूँ और जब तक जिंदगी है जिंदा रहूँगा। हर काम उसी एतमाद से करता हूँ कि जो होना है वो ज़रूर होगा, उसे रोका नहीं जा सकता, और जो नहीं होना वो नहीं होगा। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए चीफ, किसी शय की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी भी नहीं। अब उसके लहजे में मायूसी ऊद कर आई थी। दिल हल्का करो बेड, अपने बारे में बताओ, मैंने नरमी और मोहब्बत से कहा। बताने की कोई बात ही नहीं है चीफ, कोई कहानी क्या सुनाऊं? इंसानों ही की एक बस्ती का बाशिंदा हूँ, कोई भी फर्ज कर लो उसी बस्ती का। इंसान हर जगह यकसां होते हैं। मेरा भी एक जहाँ था जहाँ होश संभाला था, आराम की जगह थी, कोई तकलीफ नहीं थी। घर में खुशहाल जिंदगी थी, एक माँ थी, एक बाप भी था, एक नन्ही सी बहन जो मुझे सबसे अच्छी लगती थी, सबसे अच्छी, नेगी नेल्सन, सब्ज आंखों वाली मुस्कुराती गुड़िया जो मेरे दिल पर हुक्मरान थी। फिर कुछ अजीब वाकयात हुए, जिनमें पहला वाकया मेरी माँ की मौत का था और वो मर गई। हम दोनों बहन भाई परेशान हो गए। वो कौन करता जो माँ करती थी? हम खुद तो ना कर सकते थे, बस परेशानियों का कोई हल नहीं था। बाप नाम का शख्स भी हमारे सर पर कुछ नहीं कर सकता था। मैं नेगी के लिए वो सब कुछ करता रहा था जो माँ करती थी। उसे बनाता, संवारता, गुस्ल कराता, स्कूल भेजता, वक्त पर खाना खिलाता। लेकिन जिस तरह हमें अपनी माँ की कमी का एहसास होता था, डैडी भी अपनी बीवी के लिए परेशान हो गए थे। डैडी के पास वसाइल थे, दौलत थी, सो उन्होंने एक बीवी खरीद ली, हमारी माँ से ज्यादा खूबसूरत, उससे ज्यादा नौजवान। हम दोनों बहन भाई गरीब थे, इसलिए माँ ना खरीद सके। डैडी हमें भूल गए, वो अपनी दौलत से भी हमारे लिए माँ नहीं ला सकते थे। फिर एक और दिलचस्प वाकया हुआ, यानी डैडी भी मर गए। नई औरत से हमारी कोई शनासाई नहीं थी, वो हमारे लिए अजनबी थी। जब उसे भी शोहर की जरूरत महसूस हुई तो वो भी एक शोहर ले आई, जो उससे भी ज्यादा जवान, उनसे ज्यादा स्मार्ट। अब बताओ चीफ, हम कौन हुए उनके? ना वो औरत हमारी थी और ना वो शख्स हमारा बाप। अगर कुछ कानूनी मजबूरियां ना होती तो वो दोनों हमसे छुटकारा पा लेते, लेकिन उनके पैरों में कुछ बेड़ियां थी, इसलिए हम उस छत से महरूम ना हुए। हाँ, जब नेगी के रुखसारों पर कुछ जवानी फूटी तो माँ ने अपने किसी रिश्तेदार को उसे तोहफतन दे दिया। दुनिया के दिखाने को एक शादी थी, वो एक शराबी और जुआरी था, किसी वक्त भी होश में ना रहने वाला। नेगी के रुखसारों की शफक डूबने लगी, उसकी आंखों के गिर्द हल्के नमूदार हो गए और वो खांसने लगी। एक दिन मैं अपने फ्लैट में दाखिल हुआ तो वैडन मेरी बहन को बुरी तरह पीट रहा था। वो सिसकियां ले रही थी। मैंने वैडन को पकड़ दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने गुस्से से चीख कर कहा। कौन हो तुम? वो दाड़ा। मैं नेगी का भाई हूँ, मैंने कहा, और मैं उसका शोहर, समझे? फौरन बाहर निकल जाओ, मियाँ बीवी के मामलात में किसी और को दखल नहीं देना चाहिए, उसने मुझे समझाया। वैडन, नेगी मेरी बहन है, ऐसी बहन जिसकी परवरिश खुद मेरे हाथों हुई है, और उसके बाद तुमने उसे मेरे हवाले कर दिया। ये याद है तुम्हें? हाँ याद है, लेकिन उसकी ये हालत बनाने के लिए नहीं। देखो मिस्टर बिड, जो चीज़ मेरी मलकियत है उसके साथ मैं जो कुछ भी करूं, इसमें किसी दूसरे को मुदाखलत नहीं करना चाहिए। दरवाज़ा खुला है, बाहर निकल जाओ फौरन। उसने उंगली का इशारा किया। मैंने नेगी की तरफ देखा, वो सिसकियां ले रही थी। तब मैंने आहिस्ता से कहा, खुद को तब्दील करो वैडन। मैं अपने हाथों से बड़े किए हुए पौधे को मुरझाते नहीं देख सकता था। गेट आउट। वैडन दाड़ा और मैं खामोशी से बाहर निकल आया, लेकिन मेरा दिमाग खोल रहा था। नेगी की जिंदगी के लिए यह आदाब मुझे गवारा नहीं था। बहुत से मंसूबे मेरे ज़हन में आ रहे थे, लेकिन नेगी से मशवरा किए बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता था। फिर एक बार मैं उससे तन्हाई में मिला। नेगी, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता, इस तरह तो तुम मर जाओगी। मैं क्या करूं बिड, तुम बताओ। उससे अलहदगी इख्तियार कर लो, उसके बाद क्या होगा? क्या मतलब? मैंने हैरानी से कहा। कहाँ जाऊंगी मैं? क्या वापस उसी घर में जहां हमारे लिए कुछ नहीं है? तुम एक घर हासिल कर लो, उसके बाद भी अगर वैडन ने अपना रवैया तब्दील ना किया तो मैं। वो जुमला अधूरा छोड़कर सिसकियां लेने लगी। ठीक है नेगी, तेरे लिए मैं ये सब कुछ करूंगा, मैंने कहा, और उसके बाद मैंने मुलाजमत तलाश करनी शुरू कर दी। एक शनासा ने मुझे एक कंपनी में मुलाजिम करा दिया। वैडन भी उसी कंपनी में काम करता था। वो मुझसे आला ओहदे पर था, इसलिए मेरे साथ हमेशा हकारत का सलूक करता था। एक दिन मैं नेगी से मिला तो उसने बताया कि वैडन ने अपना रवैया कुछ तब्दील कर लिया है और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। मैंने उससे कहा कि अगर वो खुश है तो मुझे वैडन से कोई शिकायत नहीं। मैंने दफ्तर में वैडन की इज्जत करना शुरू कर दी थी, जबकि पहले सब कुछ इसके बरक्स था।
लेकिन वैडन का रवैया बदस्तूर रहा। वैडन के अच्छे इंसान बनने के कुछ असरात मैगी के चेहरे पर नुमायां ना थे और एक दिन मैंने उस अच्छे इंसान की अच्छाइयां फिर अपनी आंखों से देखी। मैं अचानक उनके फ्लैट में दाखिल हुआ था। अंदर से रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी। वैडन नैगी को बुरी तरह पीट रहा था, थप्पड़, लातें, घूंसे और इनके दरमियान नैगी की चीखो पुकार। तुम यहाँ क्यों आए हो? वो मुझे देखते ही चिल्लाया। ये क्या हो रहा है? मैंने सख्ती से कहा। तुमसे मतलब? वैडन, मैंने सर्द लहजे में कहा। क्या तुम खुद को नहीं संभाल सकते? जवाब में उसने मुझे गाली दी और नैगी को छोड़कर मुझ पर झपटा, लेकिन उसके उठे हुए हाथ को मैंने पकड़ लिया और सर्द लहजे में बोला, मैं तुम्हारे इस हाथ को शाने से उखाड़ सकता हूँ वैडन, लेकिन एक मौका और देता हूँ, खुद को संभालो, निकल जाओ मेरे घर से। नहीं वैडन, ये इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। मैं तुम्हें गिरफ्तार करा सकता हूँ। मुमकिन है तुम ऐसा कर सको, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ख्याल रखना, मैंने तंबीह के अंदाज में कहा। वैडन ने जो कुछ कहा था कर दिखाया। उसने अपने एक इंस्पेक्टर दोस्त से मिलकर मेरे खिलाफ एक ऐसा केस बनाया और मुझे 1 साल की सजा करा दी। मैं बेगुनाह जेल पहुंच गया और मेरे दिल में वैडन के खिलाफ सख्त नफरत का तूफान उमड़ आया। मुलाकात के दिन कोई मुझसे मिलने आया। नैगी के अलावा कौन हो सकता था? उसकी हालत पहले से भी खराब थी। पूरी कायनात में चीफ उसके अलावा कोई नहीं था मेरा। वो हर मुलाकात के दिन वैडन से छुप कर आती थी, मेरे लिए खाना और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें लाती थी। वो मुझे बेहद चाहती थी, लेकिन 4 माह के बाद उसने आना छोड़ दिया। मैं उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो ना आई। मेरा दिल किसी बेबस परिंदे की मानिंद सीने में फड़फड़ाता रहा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। नैगी फिर कभी नहीं आई। मैं अफसुर्दगी की ज़िंदगी गुजारने लगा। इसी दौरान जेल के अफसरान को मुझसे कोई शिकायत ना हुई और इसी वजह से 8 माह बाद ही मुझे रिहा कर दिया गया। वैडन यकीनन मुतमईन होगा कि मैं 1 साल तक जेल में रहूंगा, इसलिए मेरे पास मौका था। मैं खामोशी से पहले नैगी की खैरियत मालूम करने गया। उसके फ्लैट में कोई दूसरा खानदान आबाद था। मेरा दिल धक से रह गया। फिर वही हुआ जिसका मुझे खदशा था। मुझे इल्म हो गया कि नैगी मर चुकी है। उसकी मौत की वजह मैं जानना चाहता था। मैंने बड़ी एहतियात से वैडन के बारे में मालूमात हासिल की। वो उसी कंपनी में काम कर रहा था और इन दिनों अपनी महबूबा के साथ मुकीम था। उससे इंतकाम लेने के अलावा अब मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं था। मैं वैडन के मामूलात के बारे में छानबीन करने लगा और फिर मैंने एक मंसूबा तैयार कर लिया। वैडन अक्सर होटल डैनूब जाता था। वो उसकी पसंदीदा जगह थी। उसके आने जाने का वक्त नोट करके एक दिन मैंने तैयारियां कर ली और मुकर्रर वक्त पर मैं होटल के उस कमरे में दाखिल हो गया जहां गोश्त महफूज रखा जाता था। मैंने एक बड़ी छुरी अपने कब्जे में कर ली थी और वैडन का इंतजार करता रहा था। जो ही वैडन मुझे नजर आया, मैंने खुद को तैयार कर लिया और फिर चश्मे ज़दन में वो मेरी गिरफ्त में था। मैंने उसे अंदर घसीट लिया। मेरी सूरत देखकर वैडन की आवाज बंद हो गई थी। नैगी कैसे मरी वैडन? मैंने सवाल किया, लेकिन वो क्या जवाब देता? मैंने तुम्हें समझाया था वैडन, लेकिन अफसोस, छुरी के एक ही वार ने वैडन की अंतड़ियां बाहर निकाल दी। उसके बाद मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करने लगा। इन तमाम टुकड़ों को मैंने गोश्त टांगने वाले कांटों में फंसाकर दूसरे गोश्त के साथ टांग दिया। और चीफ, उसके बाद मैंने अपनी दुनिया ही छोड़ दी। क्या रखा था उस दुनिया में? न जाने कहां कहां मारा मारा फिरता रहा। और इसके बाद कुछ और वाकयात हुए। बहरहाल अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। बिड हंस पड़ा। जिंदगी बेवकत है मेरे लिए, बिल्कुल बेवकत। तुम्हारी कहानी दुख भरी है बिड। मैं तुम्हारे लिए अफसुर्दा हूँ। ओ नहीं चीफ, मैं खुद अपने लिए अफसुर्दा नहीं हूँ, तो तुम क्यों होते हो? बिड हंसते हुए बोला। लेकिन उसकी हंसी में कितनी कराहें थी, मैं अच्छी तरह महसूस कर रहा था। एक गमनाक सी खामोशी हमारे दरमियान छा गई थी। सुबह का उजाला रेंगता आ रहा था, फिर रोशनी हो गई। मैं और बिड उठ खड़े हुए। खाने के लिए कुछ नहीं था। हमने थोड़ा थोड़ा पानी पिया और आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद उफक में एक पहाड़ी दीवार सी नजर आई थी। हमने नए अदम और हौसले के साथ बढ़ना शुरू कर दिया। अब कुछ जिंदगी के आसार महसूस होने लगे थे। चंद आबी परिंदे उड़ते हुए नजर आए। फिर एक जानवर भी हमारे सामने से गुजर गया, जिसके बारे में कोई अंदाजा नहीं हो सका था कि वो क्या है। हमारा रुख धुंधलकों से झांकती हुई उसी पहाड़ी की जानिब था, लेकिन उसका फासला कम नहीं था। पूरा दिन भी सफर की नजर हो गया। हम आपस में मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू करते हुए आगे बढ़ते रहे। अब हमें किसी भी बात की जल्दी नहीं थी, बस पैरों तले आने वाले रास्ते तय करना थे और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रखना था जब तक कि किसी का सुराग न मिल जाए। एक बार फिर शाम करीब आ गई। भूख ने भी खासा निढाल कर दिया था। ये तमाम दिन हमने सिर्फ पानी के सहारे ही गुजारा।
इसी दौरान चूंकि जिंदगी के कुछ आसार सफर के दौरान नजर आने लगे थे, लिहाजा कुछ उम्मीद बन गई थी कि शायद आगे जाकर शिकम भरने का बंदोबस्त हो सके। इस वक्त सूरज मगरब की दहलीज पर सर झुका रहा था और उसके साथ ही कीचड़ और पानी की बू आने लगी। गालबन करीब ही कोई नदी मौजूद थी। मजीद 1 मील सफर करने के बाद हमें नदी नजर आ गई, जो किसी तरह बल खाती हुई सिलसिला को में दाखिल हो जाती थी। उसका पानी शफाफ नहीं था, उसमें कीड़े भी नजर आ रहे थे। हम किनारे पर खड़े होकर नदी में उछलते कूदते मेंढकों को देखने लगे, जो काफी तादाद में मौजूद थे। जगह जगह उनके अंडे पड़े हुए थे। बिड उन पर झपट पड़ा और बहुत सारे अंडे अपने बैग में भर लिए। ये अंडे हमारे लिए बेहतरीन गिज़ा बनेंगे चीफ, बिड ने मसरूर लहजे में कहा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। बिड इन अंडों को महफूज करने के बाद बोला, इस नदी का उबूर करें चीफ? हाँ, यही सोच रहा हूँ मैं भी। मेरे अंदाजे के मुताबिक नदी की चौड़ाई 50 या 60 गज से ज्यादा नहीं थी। बाज़ जगहों पर कुछ खुश्की सी नजर आ रही थी। गालबन नदी ज्यादा गहरी नहीं थी और इसमें चट्टानें ज्यादा थी। ये चट्टानें जगह जगह पानी में उभरी हुई थी। नदी के किनारे भी ऐसी ही चट्टानों से पटे पड़े थे। दूसरे किनारे पर उस पथरीले हिस्से के बाद दरख्तों का सिलसिला नजर आ रहा था। चीफ, अगर हम पानी में उभरी हुई चट्टानों पर कदम रखते हुए दूसरी तरफ जाएं तो कैसा रहेगा? मेरे ख्याल में तो ये ज्यादा महफूज तरीका होगा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। तो आओ, बिड ने कहा और किनारे से पानी की तरफ चल पड़ा। उसने एक चट्टान पर छलांग लगाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी चट्टान पर। मैं भी रुके बगैर उसके पीछे चल पड़ा था। पहली चट्टान पर कूदने के बाद मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ था, लेकिन चूंकि बिड रुके बगैर तेजी से छलांगे लगाता हुआ आगे निकल गया था, लिहाजा मैंने भी रुककर कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं समझी और उसके पीछे छलांगे लगाता हुआ आगे बढ़ता रहा। 50-60 गज का फासला कम नहीं होता, लेकिन हम जिस तेजी से उसे तय कर रहे थे वो भी काबिले दीद था। चुनाचे जल्दी दूसरे किनारे के करीब पहुंच गए। बिड ने आखिरी चट्टान से किनारे पर छलांग लगाई और फिर उसके हल्क से एक वहशतज़दा आवाज निकल गई। मैं एक लम्हे के लिए ठिठका तो अचानक मुझे अपने पैरों के नीचे चट्टान हिलती महसूस हुई। मैंने बेइख्तियार एक लंबी छलांग लगा दी और उस किनारे पर कूद गया। बिड हल्क से अजीब सी आवाजें निकाल रहा था और इस बुरी तरह उछल कूद कर रहा था। जिस आखिरी चट्टान से मैंने खुश्की पर छलांग लगाई थी उसका हुजम बढ़ता जा रहा था और फिर उसकी लंबी सी दंदानों वाली दुम पानी से बाहर निकल आई। तब मुझे ख्याल आया कि पहली छलांग पर मैंने कुछ अजीब सा क्यों महसूस किया था। वो मगरमच्छ थे जो पानी में पड़े हुए थे। अभी इस बात पर हैरत ज़दा भी नहीं हो सका था कि बिड चिल्लाया, भागो चीफ भागो। मैंने पलटकर उसे देखा और मेरे बदन के सारे रोंगटे खड़े हो गए। किनारे पर चट्टानें उभरी हुई थी, वो भी मगरमच्छों की कोई अजीम शान फौज थी। हमारी उछल कूद से उनमें तहरीक पैदा हो गई और वो किलबिलाने लगे। उनकी खौफनाक दुमें बुलंद होने लगी, लेकिन जाए पनाह कहाँ थी। एक मगरमच्छ पर से उछलते तो दूसरे पर जा कूदते। 15-20 गज के फासले पर दरख्त नजर आ रहे थे, घने और तनावर दरख्त। सो उसी तरफ भाग पड़े थे। एक दरख्त के करीब पहुंचकर बिड फिर चीख कर बोला, दरख्त चीफ, दरख्त है। और फिर उसने एक मगरमच्छ की पुश्त से दरख्त के तने पर छलांग लगाई और किसी बंदर की तरह उससे चिपक गया। फिर नहायत फुर्ती से वो तने पर चढ़ता चला गया। मैं उस दरख्त तक तो नहीं पहुंच सका था, लेकिन दूसरा दरख्त जो उससे कोई 5 गज के फासले पर था मेरी पनाहगाह बना और मैं तेजी से उसकी बुलंद शाख पर पहुंच गया। दरख्त से कुछ फासले पर एक बड़ा सा मगरमच्छ अपनी खौफनाक दुम उठाए दरख्त की तरफ आ रहा था। उसके पीछे ही दूसरे बेशुमार मगरमच्छ मुंह फाड़े छिपकलियों की तरह चलते हुए दरख्त की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी दुमें काफी लंबी लंबी थी। दफादन दरख्त के नीचे पहुंच जाने वाले मगरमच्छों ने दरख्त के तने पर दुम मारना शुरू कर दी और दरख्त लरजने लगे। ऐसे ही बकिया मगरमच्छ बिड के दरख्त के नीचे भी पहुंच गए थे, मगर अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। फौरी तौर पर हम उन खूनख्वार बलाओं से महफूज हो गए थे, मगर उनसे मुकम्मल तौर पर निजात की फिलहाल कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। वो सब मिलकर तवातर से अपनी दुमें दरख्त के तने पर मार रहे थे, जिसके सबब दरख्त इस तरह हिल रहा था जैसे जलजला आ गया हो। अब पिस्तौल इस्तेमाल किए बगैर चारा कार नहीं था। चुनाचे मैंने पिस्तौल निकाल लिया और फिर एक मगरमच्छ के खुले हुए मुंह का निशाना लेकर फायर कर दिया। गोली मगरमच्छ के हल्क में घुस गई। वो तड़प कर पीछे हटा तो मैंने उसके सर का निशाना ले लिया। ये फायर भी कारगर हुआ था। मगरमच्छ बुरी तरह अपने दूसरे साथियों को धकेलता हुआ भागा, लेकिन कमबख्त दूसरे मगरमच्छ उससे खौफजदा नहीं हुए थे। कई मगरमच्छ मुझे अपनी छोटी छोटी लिलचाई हुई आंखों से घूर रहे थे, दरख्त के गिर चक्कर लगा रहे थे। बिड अभी तक खामोश बैठा हुआ था।
मैंने उसे आवाज दी तो वो मुतमईन लहजे में बोला, ठीक जा रहे हो चीफ, मेरे लिए कोई हुक्म? नहीं, ऐश करो, मैंने भी तमस्कराना अंदाज में कहा। देर तक मगरमच्छ कुछ हंगामा करते रहे, फिर वो पुरसुकून होते चले गए और वहीं जमीन पर उसी तरह बेहिस्सो साकत पड़ गए जैसे जमीन ही का एक हिस्सा हूँ। बिड अब ये इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैंने उसे मुखातिब किया, करने दो चीफ, हम इनकी किस्मत में नहीं हैं। बिड ने जवाब दिया। रात का अंधेरा फैलने लगा। वो खौफनाक रात हमें दरख्तों पर ही गुजारना पड़ी थी। मगरमच्छों के खौफ के अलावा दीगर जंगली जानवरों की आवाजें भी हमें बेदार रखने के लिए काफी थी, लेकिन कमबख्त थकन उसी तरह गालिब थी कि आंखें खुली रखना मुश्किल हो रहा था। हर लम्हा खतरा था कि कहीं नीचे ना जा पड़े। मैं बुरी तरह टूट रहा था। खुद को अलर्ट रखने के लिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद बिड और मैं बातें करने लगते थे। सुबह का उजाला फैल रहा था जब बिड ने अचानक कहा, चीफ वो जा रहे हैं। लेकिन उसके बोलने से कबल ही मैं भी वो हैरत अंगेज मंजर देख चुका था। मगरमच्छों का लश्कर अजीम दरिया का रुख कर रहा था। सब के सब उसी तरफ जा रहे थे। गुसल को दिल तो मेरा भी चाह रहा है चीफ, लेकिन ये कमबख्त अपने दरमियान जगह कहाँ देंगे। बिड की चहकती हुई आवाज दोबारा आई और मुझे खुशी हुई कि इन हालात में भी उसकी जिंदा दिली बरकरार थी। गुस्ले जिंदगी कर लो तो गनीमत है बिड, ये जरा और आगे बढ़ जाएं तो नीचे उतरकर दौड़ लगा दो, वरना उसके बाद ये लंच करने वापस आ जाएंगे। ओ माय गॉड, तुम नाश्ता करना भूल ही गए चीफ, गुस्ल करके ये नाश्ता करेंगे, बिड बोला और फिर उसने बर्क रफ्तारी से नीचे उतरना शुरू कर दिया। आसपास अब कोई मगरमच्छ नहीं था, इसलिए मैंने भी दरख्त से नीचे उतरने में देर नहीं की। जमीन छूते ही हम इस तरह भागे जैसे रूहें हमारा ताकुब कर रही हूँ। उस वक्त तक दौड़ते रहे जब तक के फेफड़े काम करते रहे। इसी दौरान हमने इतराफ की सूरत हाल पर भी गौर नहीं किया था। दरख्तों के दरमियान दौड़ रहे थे और बस इस एहतियात के साथ कि खुद को किसी दरख्त से टकराने से बचाएं। दफातन बिड एक दरख्त से टकराया और फिर उछलकर पुश्त के बल एक तरफ गिरा। उसके मुंह से एक तवील करा निकल गई थी। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ा तो वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, लानत है, क्या हुआ बिड, क्या चोट आ गई? मैंने पूछा। नहीं चीफ, नुकसान हो गया। इतना वजन कमर पर लाद कर भागते हुए मुझे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। लेकिन बिड ने अफसोसनाक लहजे में कहा और मैं बिड को देखने लगा। वाकई बेचारे बिड की मेहनत अकारत हो गई थी। कछुओं के अंडों का उसने दरख्त पर चढ़ते हुए भी ख्याल रखा था, लेकिन अब इस बुरी तरह दरख्त से टकरा कर गिरा था कि सारे अंडे टूट गए थे और उनका स्याल उसी के ज़ेरी बदन पर बह रहा था। मेरे हल्क से कहका निकल गया और बिड शिकायती अंदाज से मुझे देखने लगा। तुम हंस रहे हो चीफ? मैं सारी रात इस ख्याल से लुत्फ उठाता रहा हूँ कि इन अंडों को आग पर भूनूंगा और एक बेहतरीन खुराक तैयार हो जाएगी। यकीन करो चीफ, इतने लजीज होते हैं ये कि मजा आ जाता है। बहरहाल अब तो ये तुम्हारे बदन पर मालिश के लिए मुनासिब है बिड। वैसे भी कम अज कम मैं इन अंडों को नहीं खा सकता था। क्यों चीफ? बिड ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। मेरे मज़हब में ये जायज़ नहीं है, मैंने जवाब दिया और बिड हैरान होकर मुझे देखने लगा। गोया चीफ, यहाँ भी इन हालात में भी तुम अपने मजहब के उसूलों को मद्देनजर रखोगे? हाँ बिड, यहाँ भी और उन हालात में भी मेरा राब्ता मेरे रब से है, उससे जिससे मैंने पानी मांगा तो उसने इनकार ना किया। बिड निचला ऊंट दांतों में दबाकर पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा, फिर बोला, तब तो मुझे भी अब उनके टूट जाने का अफसोस नहीं चीफ। थोड़ा थोड़ा सा मेरा भी राब्ता तुम्हारे खुदा से होता जा रहा है। हम दोनों गुफ्तगू करते हुए आगे बढ़ने लगे। जमीन की चादर फैली हुई थी। हमारा ख्याल था कि हम किसी ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जो महफूज और साफ सुथरी हो और उसके बाद आराम करने बैठेंगे। मगरमच्छों का अब कोई खतरा नहीं रहा था, चुनाचे हम उनकी तरफ से बिल्कुल मुतमईन थे। हमारा सफर जारी रहा, लेकिन मुसीबतों ने अभी साथ नहीं छोड़ा था। हम दोनों कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे कि अचानक घास के ऊपर एक अजीब सी लजलेजी स्याह रेशों से बनी हुई कोई शय नजर आई। हम अभी पूरी तरह उस पर तवज्जो भी नहीं दे सके थे कि दफादन हमारे जिस्मों को एक जोरदार झटका लगा और उसके साथ ही हमारे पांव जमीन से उखड़ गए। हम बर्क रफ्तारी से फिजा में परवाज कर रहे थे। चंद ही लम्हे बाद हमें यह अंदाजा हो गया कि हम किसी जाल में फंस चुके हैं जो अजीब सी लजलजी शय से बनाया गया था। हमारे चारों तरफ बुलंद दरख्त थे और एक दरख्त ही की मजबूत शाख से इस जाल के सिरे बंधे हुए थे। हम जमीन से तकरीबन 15 फीट ऊपर खला में झूलने लगे। बिड मेरे ऊपर आ पड़ा था, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और जाल की लजलजी रस्सियां पकड़कर बुरी तरह मचलने लगा। मैंने भी खुद को संभाल लिया था और जाल के सुराखों में उंगलियां फंसाकर बिड के ऊपर गिरने से बचा। बिड मुतवश निगाहों से दरख्त की उस शाख की तरफ देख रहा था
जिस पर जाल बंधा हुआ था। इतराफ में कोई आहट नहीं थी। बिड चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर उसने पिस्तौल निकाल दिया और दरख्त की उस शाख पर बंदिशों का निशाना लेकर गोलियां चलाने लगा जिस पर जाल बंधा हुआ था। लेकिन उसकी ये कोशिश अभी कारगर नहीं हुई थी कि दफातन झाड़ियों में सिरसिराहटें हुई और फिर इंतहाई बदनुमा शक्लों ने झांकना शुरू कर दिया। उनके लंबे लंबे बाल एक मखसूस अंदाज में सरों के ऊपर बंधे हुए थे। चेहरे रंगीन नक्शो निगार से सजे हुए थे। नाकें इंतहाई चौड़ी और पूरे चेहरे पर फैली हुई थी। होंठ मोटे मोटे इंतहाई बदनुमा थे और चेहरे भयानक थे। जिस्मों की रंगत स्याह की बजाय स्लेटी महसूस होती थी। उनके हाथों में एक एक गद लंबे खास किस्म के नेज़े थे। बाकी जिस्मों पर लिबास नाम की कोई शय नहीं थी। तादाद के एतबार से यूं महसूस होता था जैसे जमीन के सुराखों से उबल रहे हों। बिड ने फौरन ही पिस्तौल निकाला तो मैंने तहमकाना लहजे में कहा, नहीं बिड, अपनी मौत को दावत दे रहे हो। ऐसी कोई कोशिश ना करो। अगर इनमें से एक भी तुम्हारे हाथों हलाक हो गया तो हम इनके नेज़ों में छिद कर रह जाएंगे। बेहतर यही है कि अमन पसंदों का सबूत दो। मेरी बात बिड की समझ में आ गई थी। अगर हम अपने पास मौजूद तमाम कारतूस इस्तेमाल कर लेते तब भी उन सब को इलाक नहीं कर सकते थे और नतीजे में हमें उनके इंतकाम का शिकार होना पड़ता। एहतियातन अपने पिस्तौल हमने अपने लिबासों में महफूज कर लिए थे। वैसी नेज़े ताने जाल की तरफ बढ़ रहे थे और फिर वो हमारे बिल्कुल करीब पहुंच गए। उनकी आंखों में खुशी की चमक नजर आती थी। उन्होंने हमें नेज़ों से छू कर देखा और फिर आपस में कुछ बातें करने लगे। उसके बाद दो आदमी उस दरख्त पर चढ़ने लगे जिसकी शाख पर जाल लटका हुआ था। उन्होंने जाल खोला और हम बद से नीचे आ गिरे। 15 फीट की बुलंदी से गिरते हुए खुद को संभालना आसान काम नहीं था। खासी चोट लगी थी और हम जमीन से उठ नहीं सके थे। उठने की कोशिश भी करते तो कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि जमीन पर गिरते ही हमारे जिस्मों से बेशुमार नेज़ों की नोकें लग गई थी। हम दोनों चारों शाने चित लेट गए और हाथ पांव फैला दिए। वो लोग गहरी निगाहों से हमारा जायजा ले रहे थे और जब उन्हें ये अंदाजा हो गया कि हम किसी किस्म की मुदाफित का इरादा नहीं रखते तो उन्होंने अपने नेज़ों की आनियां हमारे जिस्मों पर से हटा ली। मैंने उनके बारे में सोचा कि शायद वो आतिशी हथियारों के इस्तेमाल से वाकिफ न हो और हमारे सामान को इसी तरह छोड़ दें, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। बेशुमार अफ्रीकी हम पर टूट पड़े थे। मुदाफित की हर कोशिश नाकाम रही थी। कमबख्तों ने हमारे लिबास तक जिस्मों से नोच लिए थे। एक अंडरवेयर के सिवा जिस्म पर लिबास नाम की कोई शय न रही। उन्होंने बालों से पकड़कर हमें सीधा खड़ा कर दिया। अब हमारी एक एक चीज उनके कब्जे में थी। फिर नेज़ों की नोकें हमारी पुश्त पर चुभोकर हमें आगे बढ़ने का इशारा किया गया। बिड के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। मैं भी इस वक्त खासा खौफजदा हो गया था। जाहिर है ये सूरत-ए-हाल मेरे लिए बिल्कुल नई थी। मुहज़्ज़ब दुनिया के इंसानों से तो वास्ता रहा था, लेकिन अफ्रीका के ये वैशी मेरे लिए नाकाबिले फहम थे। बैर तो और हम उनके साथ आगे बढ़ते रहे। तकरीबन 1 फरलांग चलने के बाद घने दरख्तों का सिलसिला खत्म हो गया और सामने ही एक वसीउ अरीज मैदान नजर आया जिसमें नोकदार झोपड़ियां बनी हुई थी। ये झोपड़ियां एक दूसरे से खासे फासले पर थी और इनके इतराफ में दरख्त भी नजर आ रहे थे, खास तौर से नारियल के दरख्त। बिड ने सहमे हुए लहजे में कहा, चीफ, मुझे एक और खतरा महसूस हो रहा है। वो क्या बिड? कहीं ये आदम खोर ना हो। इन कमबख्तों के अंदाज से ऐसा ही महसूस हो रहा है। मैं थूक निकल कर रह गया। बेबसी का एहसास खासा शदीद था। बज़ाहिर कोई तदबीर नजर नहीं आ रही थी। बकिया सफर भी तय हो गया और हम उन नोकदार झोंपड़ियों के दरमियान पहुंच गए। एक बड़े से आते में जहां नारियल के दरख्तों का एक झुंड नजर आ रहा था, हमने कुछ लोगों को बंधे हुए देखा। उन्हें इसी लजलजी चीज की रस्सियों से बांधा गया था जिसका जाल बनाया गया था। बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता था जैसे कछुओं को आपस में मिलाकर ये रस्सियां बनाई गई हों। ना वो रबर था और ना ही किसी दरख्त वगैरह की छाल मालूम होती थी जिससे ये रस्सियां बनाई गई थी। लेकिन इसका अंदाजा हमें बहुत जल्द हो गया। ये रस्सियां किसी भी कीमत पर तोड़ी नहीं जा सकती थी। उन्हें खींचा जाता तो ये कुछ लंबी हो जाती थी, लेकिन इनका तोड़ना नामुमकिन था। दरख्तों के करीब ले जाकर हमें भी उनके तनों से बांध दिया गया। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर उन लोगों को देखा जो दरख्तों से बंधे हुए थे। उनमें एक सफेद फाम बूढ़ा था, 2 नौजवान थे, लेकिन चौथे शख्स पर मेरी नजर पड़ी तो मैं चौंक पड़ा। ये चेहरा मेरा शनासा था। तबाहली के बावजूद खदोखाल पहचानना मेरे लिए मुश्किल साबित ना हुआ। वो नवाब सिराजुद्दीन थे। लिबास के नाम पर एक धज्जी भी उनके बदन पर ना थी। दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल चिपक कर एक अजीब सी शक्ल इख्तियार कर गए थे। आंखों में गहरी सुर्खी थी और चेहरे पर दीवानगी के आसार।
बीड़ ने दांत भींचते हुए कहा, कमबख्तों ने उस बुरी तरह बांधा है कि बदन टुकड़ों में तकसीम होता हुआ महसूस हो रहा है। मेरा ख्याल है चीफ, यहाँ हमारी तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। क्या कहते हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी निगाहें नवाब सिराजुद्दीन पर जमी हुई थी। उनको इस हालत में देखकर मुझे शदीद दुख का एहसास हुआ था। मैंने मतलाशी निगाहों से चारों तरफ देखा और ये अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगा कि यहाँ और लोग भी हैं या नहीं। खास तौर से दिलनशी और नवाब सिराजुद्दीन के दूसरे साथियों के बारे में सोचने लगा। एक गोशे में हमारी नजर पड़ी और मेरा बदन कांप कर रह गया। यहाँ इंसानी हड्डियों और खोपड़ियों के अंबार लगे हुए थे। कुछ हड्डियां और खोपड़ियां ऐसी थी जो ताज़ा महसूस होती थी। बड़े बालों वाली एक खोपड़ी भी दूर पड़ी हुई नजर आ रही थी। बाद हड्डियों में गोश्त चिपका हुआ था और इतराफ में सड़ांड फैली हुई थी। इस नज़ारे के बाद ये साबित हो गया था कि हम आदमखोरों के दरमियान थे और इस तसव्वुर से ही हमारे रोंगटे खड़े हुए जा रहे थे। दरख्तों से बंधे हुए बकिया लोग शायद ज़हनी तवाज़ुन कायम नहीं रख सके थे। नवाब सिराजुद्दीन की ये हालत देखकर मुझे शदीद अफसोस हो रहा था। वैशी हमारे दरमियान घूमते फिर रहे थे। उनके अंदाजे से यूं महसूस हो रहा था जैसे हमारा यहाँ लाया जाना कोई अनोखी बात ना हो। इसका मतलब था कि सहराए आज़म में भटकने वाले अक्सर इनके हाथों लगते रहते थे और वो उनकी मुदाफ़ती कार्रवाइयों से वाकिफ थे। हमारा सामान इसी तरह गायब कर दिया गया था कि हमें उसका निशान भी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर तक वो हमारे दरमियान रहे, फिर अपनी अपनी झोंपड़ियों की जानिब चले गए। यहाँ से उनकी नकलो हरकत नजर आ रही थी, लेकिन हम ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि उनके रहन सहन का अंदाज कैसा है और अब वो हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। जब आखिरी वैशी भी चला गया तो मैंने नवाब सिराजुद्दीन को जोर से पुकारा और बिड़ चौंक कर मुझे देखने लगा। नवाब सिराजुद्दीन का फासला मुझसे इतना ज़्यादा नहीं था कि वो मेरी आवाज़ ना सुन पाते, लेकिन मेरे ज़ोर ज़ोर से चीखने पर भी उन्होंने मेरी जानिब रुख नहीं किया था और ना ही उन दो सफ़ेद फामों ने मेरी आवाज़ पर गौर किया था। नवाब साहब, नवाब सिराजुद्दीन साहब, इधर देखिए प्लीज़। जवाब में नवाब सिराजुद्दीन के होंठों पर कुछ लर्जिश सी उभरी, लेकिन इतनी मध्यम कि उनकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच सकी। मुझे अंदाज़ा हो गया कि उनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है और उसकी वजह उनके बकिया साथियों की मौत भी हो सकती थी। सारा दिन उसी तरह गुजर गया। रात होने लगी। हमारे बदन भी जाम हो चुके थे। एक एक अज़ू चीख चीख कर कह रहा था और हम दम बखुद इंतज़ार कर रहे थे कि देखें कि अब गैब से क्या ज़ाहिर होता है। लेकिन वैशी हमें यहाँ लाने के बाद भूल ही गए थे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बीडी से दौरान बिल्कुल खामोश रहा था। बेरदौर इंसान था और इन हालात में दलेर से दलेर इंसान भी खौफ के जज्बात से आरी नहीं रह सकता। फिर रात सरों पर आ गई। हम भूख और प्यास की शिद्दत से निढाल थे, लेकिन उन तकलीफों का कोई इलाज नहीं था। रात अपनी तमाम तर होलनाकी के साथ बीत गई। नीम मदोशी सी की कैफियत तारी थी। जब सुबह हुई, मैं आंखें फाड़ कर कुर्बो जवार में देखने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं नवाब सिराजुद्दीन और दूसरे लोग कब से यहाँ बंधे हुए थे। इस माहौल में उनकी ज़हनी कैफियत का बिगड़ जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। बीडी भी खामोश था और बुझा बुझा सा नजर आ रहा था। मैं खुद भी उसे मुखातिब नहीं कर रहा था। अभी सूरज की रोशनी पूरी तरह फैली भी ना थी कि बस्ती में एक जिम गफीर बरामद हुआ। वैसे छोटे छोटे गिरोहों की शक्ल में इसी तरफ आ रहे थे। उनके दरमियान एक तवीलुल कामत शख्स था जो गालिबन उनका सरदार मालूम होता था। सरदार के सर पर परों की गलगी थी और उसके साथ ही एक मुन्नी सा आदमी भी मौजूद था जिसके गले में इंसानी सरों की माला पड़ी हुई थी। बिल्कुल छोटे छोटे सर, जिनके बारे में कभी मैंने पढ़ा था कि अफ्रीका के वैशी किसी खास तरीके से अपने दुश्मन के सर काट कर इस तरह सुकेड़ लेते हैं कि उनके खदोखाल और शक्ल में फर्क नहीं आता और फिर उन्हें अपने पास फतह के निशान के तौर पर महफूज रखते हैं। वैशी हमारे करीब आ गए तो मैंने उनका बगौर जायजा लिया। मुन्हनी बूढ़े का सीना खुला हुआ था और उसके लंबे लंबे बाल पुश्त और कमर पर फैले हुए थे। पेट के ऊपर सांप के फुन का निशान बना हुआ था। देखने से यूं नजर आता था जैसे सांप ने उसे अपनी कुंडली में जकड़ रखा हो। दूसरे वैशियों के जिस्मों पर रंगों से नक्शो निगार बने हुए थे। उसी तरह मैंने औरतों और बच्चों को देखा। सब के सब एक ही जैसे थे। सरदार हमारी जानिब मुतवज्जो हुआ और इस तरह हमारा जायजा लेने लगा जैसे कसाई रेवड़ पर निगाह डालकर मोटे ताजे बकरे का इंतखाब करता है। फिर उसने आगे बढ़कर दाढ़ी वाले तनोमंद सफेद फार्म के शाने पर हाथ रख दिया। वैश्यू ने एक जोरदार नारा लगाया और मस्ती से उछलने कूदने लगे। फिर चंद अफराग ने आगे बढ़कर सरदार की खिदमत में खोपड़ियों का तोहफा पेश किया।
इस कार्रवाई के बाद वैशी आगे बढ़कर सफेद फार्म की बंदिशें खोलने लगे। जैसे ही वो बंदिशों से आजाद हुआ, जमीन पर गिर पड़ा। उसमें खड़े होने की ताकत नहीं थी और फिर एक वहशतनाक मंजर मेरी निगाहों के सामने आ गया। उन्होंने मखसूस किस्म की लकड़ियों में सफेद फार्म के जिस्म को कसा और उसे टिक टिकी निमान लकड़ियों पर उल्टा लटका दिया। फिर एक लंबे नेज़े से सफेद फार्म के पेट को चीर दिया और एक शख्स उसकी आंतें निकाल कर बाहर फेंकने लगा। ये सब कुछ मेरे और बिड के लिए इंतहाई कराहत अमेज और दहशतनाक था। मैंने फौरन ही अपनी आंखें बंद कर ली। ये नज़ारा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन मैं अपने कान तो नहीं बंद कर सकता था। सफेद फार्म की चीखों ने मेरा दिल हिला कर रख दिया था। दिमाग में पे दर पे धमाके हो रहे थे। अपनी बेबसी के एहसास से मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। वैश्यों ने सफेद फार्मों के बदन के नीचे लकड़ियां जमा करके उसमें आग लगा दी थी। जले हुए गोश्त और चर्बी की बू फैलने लगी तो मैंने आंखें खोलकर देखा और मेरा बदन खौफ से कांपने लगा। हल खुश्क हो रहा था और लड़ते हुए पैरों ने जिस्म का बोझ संभालने से इनकार कर दिया था। लेकिन जिस तरह मुझे बांधा गया था उसकी वजह सिर्फ इतना ही कर सकता था कि अपने पैरों को बदन के बोझ से आजाद कर दूं। मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो जिस्म की बंदिशें गोश्त में घुसने लगी। आसाब जवाब देते जा रहे थे। अब अपना इबरतनाक अंजाम भी सामने नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो दरिंदे सफेद फार्म का कच्चा पक्का गोश्त नाखूनों और दांतों से नोच कर जियाफत उड़ा रहे थे, लेकिन सरदार उनमें शामिल नहीं था। देखते ही देखते सफेद फार्म की हड्डियों का ढांचा निचा कर लकड़ी पर डाल दिया गया और कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा गोश्त उसके बदन से चिपका हुआ था। मैंने एक जोरदार चीख मारी तो सरदार मेरी जानिब मुतवज्जो हो गया। मैंने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया था। बहुत से वैशी दिलचस्पी से मेरी तरफ देखने लगे। फिर सरदार अपनी जगह से उठा और मेरे करीब आ गया। मैंने चीख चीख कर उससे कहा कि वो हमारी जान बख्शी कर दे, लेकिन वो मेरा एक लफ्ज भी नहीं समझ सका। बस जर्द गलीज दांत निकाले एमको की तरह हंसता रहा। ये तमाम कोशिशें बेसुध थी। थोड़ी देर तक वो मेरे साथ खड़ा रहा और फिर बेपरवाही से शाने हिलाकर वापस अपने साथियों के करीब पहुंच गया। दफतन मुझे बिड की आवाज सुनाई दी, चीफ भूख का क्या हाल है? बिड की आवाज में एक अजीब सी कैफियत थी। मौत को यकीनी समझने के बाद शायद अब वो मौत के खौफ से आजाद हो गया था। मैंने निगाहें घुमाकर उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिया। कमबख्त बहुत ही बदइखलाक मालूम होते हैं। थोड़ा बहुत गोश्त हमें भी दे देते तो क्या अर्ज था। क्या फजूल बकवास कर रहे हो बिड? इन हालात में भी ऐसा मजाक कर सकते हो तुम? मैंने गुस्से से कहा। देखो चीफ, जब तक खौफ दामन गिर था मैंने अपने ज़हन को काबू में रखा, लेकिन अब जब हमें मौत से निजात का कोई जरिया नजर नहीं आता तो क्या फायदा रोने बसोरने से। मुमकिन है थोड़ी देर के बाद ये सरदार हम में से किसी पर हाथ रख दे और उसके बाद वाह चीफ, कमबख्त भून कर खाते हैं। इन्हें इंसानी गोश्त कैसा लगता होगा? इन कमबख्तों को खाते देखकर इन पर रश्क आ रहा है। बीड़ कह के लगाने लगा, लेकिन उसकी कैफियत में एक अजीब सी बेबसी थी। गोश्त साफ हो चुका था और इस वक्त शायद वो लोग मजीद खाना नहीं चाहते थे। ये रस्म मुमकिन है तबर्रुक के तौर पर ये लोग करते हों, वरना जाहिर है चंद अफराद इन आदमखोरों का पेट नहीं भर सकते थे। थोड़ी देर के बाद वो बस्ती की जानिब वापस चले गए। अलबत्ता कुछ वैसी पहरेदारों के तौर पर हमसे कुछ फासले पर बैठे रह गए। सूरज सर पर पहुंचा तो बस्ती से फिर एक जुलूस बरामद हुआ। चंद वैसी एक और कैदी को खींचते हुए लाए और उसे हमसे कुछ फासले पर एक दरख्त से बांध दिया गया। मैं और बिड आंखें फाड़ फाड़ कर उस कैदी को देखने की कोशिश कर रहे थे। वो एक नौजवान आदमी था जिसकी शक्ल हमारे लिए अजनबी थी। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन वैश्यों पर उसके चीखने चिल्लाने का कोई असर ना हुआ। उन्होंने उसे मजबूती से बांध दिया। तब वो जोर जोर से गालियां बकने लगा, लेकिन उसकी गालियों पर भी किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। कुछ वक्त और गुजरा तो बस्ती ही की तरफ से मुअज़्ज़ज़ वैशी खवातीन का एक जुलूस बरामद हुआ। उस जुलूस के साथ वो बदबख्त सरदार भी मौजूद था। औरतों की तादाद 20-25 के करीब थी, जिनके सरों पर कलगियां लगी हुई थी और उससे जाहिर होता था कि उनका ताल्लुक सरदार के खानदान से है। तब एक अजीब खून आशाम रक्स का आगाज हुआ। पहने आने वाले तमाम लोग मुनासिब फासले पर कतारें बांध कर बैठ गए। दरख्त से बंधा हुआ कैदी अब भी मुसलसल चीखे जा रहा था। वो शायद डुच था और उसी जबान में गालियां बक रहा था। वो मुनहनी बूढ़ा भी किसी तरफ से बरामद हुआ और चीखते हुए कैदी के करीब पहुंच गया। उसके हाथ में एक मशल दबी हुई थी। कैदी के करीब पहुंचकर वो रक्स करने लगा और फिर उसने आगे बढ़कर कैदी के सीने पर जलती हुई मशल से एक निशान बना दिया। रक्स करती हुई औरतों ने एक होलनाक चीख मारी और रक्स की शिद्दत में इजाफा हो गया।
कैदी की दर्द भरी चीख उन आवाजों में दब गई थी। औरतों के हाथों में पतली पतली और नोकदार लकड़ियां थी जिन्हें वो हिला हिला कर रक्स कर रही थी। फिर अचानक कुछ अजीब किस्म के 7 बजे और उसके साथ ही रक्स की रफ्तार भी तेज हो गई और उसके बाद एक औरत झूमती जामती दरख्त की जानिब बढ़ी और कैदी की दर्दनाक चीख फिजा में गूंज उठी। नोकदार लकड़ी उसकी ठोड़ी के नीचे से जबान को चीरती हुई तालू में पेवस्त हो चुकी थी। उसके सीने पर खून की धारें गिर रही थी। तकलीफ और दर्द की शिद्दत से वो अपना सर जोर जोर से दरख्त के तने से टकरा रहा था। यके बाद दिगरे दूसरी रकासाएं भी आगे बढ़ी और कैदी के सीने पर बहता हुआ खून अपनी जबानों से चाट कर गोया एक फरीदा अंजाम देने लगी। जब कैदी की गर्दन से बहने वाला खून खत्म हो गया तो एक रकासा ने नोकीली लकड़ी कैदी के बदन के दाहिने बाजू में पेबुस कर दी और फिर लम्हा भर बाद उस बदनसीब कैदी के बदन में जगह जगह लकड़ी की मेखें गड़ी हुई नजर आने लगी। उसकी आवाज बंद हो गई थी, गर्दन सीने पर लटक गई थी, शायद वो मर चुका था। चंद लम्हों के बाद सरदार आगे बढ़ा और उसके हाथ में चमकता हुआ खंजर था। मैंने सर्द निगाहों से उस खंजर को देखा और फिर मेरे बदन पर अजीब कपकपी तारी हो गई। ये खूनी मंजर अपने उरूज पर पहुंच गया था। सरदार ने उस बदनसीब कैदी का सीना चाक करके उसका धड़कता हुआ दिल नोच लिया था और उसे कच्चा ही चबा रहा था। इससे ज्यादा इंसानी आंख नहीं देख सकती थी। मैंने बिड को पुकारा लेकिन बिड के मुंह से आवाज नहीं निकल सकी थी। 2-3 बार बिड को आवाज दी लेकिन वो जवाब नहीं दे सका। मजलूम कैदी की लाश अब दरख्त से हटाकर भूनी जा रही थी और फिर औरतें उस लाश पर भी टूट पड़ी। उनकी रफ्तार कुछ ज्यादा ही थी। बिल्कुल ऐसा महसूस होता था जैसे मक्खियों का कोई गोल शहद के छत्ते पर पिल पड़ा हो। उनकी होलनाक आवाजें उभर रही थी। फिर वो जब एक साथ पीछे हटी तो कैदी की हड्डियों का पिंजर हमारी निगाहों के सामने आ गया। बिड ने एक ज़ियानी सा कहका लगाकर कहा, देखा चीफ, औरतें यहाँ भी कफायत शार हैं। मर्दों ने इससे पहले शख्स के बदन पर गोश्त की कुछ बोटियां लगी हुई छोड़ दी थी लेकिन ये कमबख्तें तो उसकी हड्डियां तक चाट गईं। मैंने बिड की तरफ देखा। उसकी ज़हनी कैफियत का मुझे अंदाजा हो रहा था। अब कुछ ही लम्हे जा रहे थे कि हमारी बारी भी आने ही वाली थी और बिड